Hello everyone, welcome to Prepa IAS. My name is Dimple Nankani and we continue with the series of Geography Crash Course. ये आपका चौथा लेक्चर है. This is based on the continental drift theory. Continental drift theory, this is given in your class 11th NCERT, the fundamentals of physical geography. However, उस NCERT में जिस हिसाब से continental drift theory पढ़ाया है, उसमें कई सारे gaps हैं, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से explain नहीं की हैं और कोई sequence follow नहीं किया गया. To fill this gap, we have come up with this lecture, the lecture 4 of the continental drift theory. जब वेगनर अपनी थ्योरी दे रहे थे 1912 में, तब कई सारे डिबेट चल रहे थे. डिबेट्स लाइक हाउ इज द क्रस्ट फॉर्म, डिबेट्स लाइक व्हाट इज द climate and how it has changed, debates like the mystery of the formation of the fold mountain. So इसी debates के दौरान वेगनर ने अपनी थ्योरी दी थी. तो पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं, the various debates that have been taking place in geography during this time. The first major debate was the major variation in the Earth's climate. When Wegener was studying, he is actually a meteorologist. तो Wegener वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ रहे थे, अर्थ का क्लाइमेट पढ़ रहे थे. जब वेगनर ने अपनी थ्योरी दी, तब वेगनर ये जानना चाह रहे थे that how has the Earth's climate changed. So he could see that the Earth's climate has changed drastically over the years, and for this there could have been only two reasons. या तो zones of the earth बदली होंगी, the climatic zones, warm to hot to warm to hot, या तो फिर आपका जो अर्थ है उसमें जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जगह बदल गई होगी, जिसके कारण आपका इतना रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेट दिखता है. सो देयर कैन बी टू रीजन दैट when Wegener was explaining about the variation in the earth, that the continents remain stationary and the climate zones have changed, or the climate zones remain stationary and the continental lines might have changed. So Wegener believed in the second idea. Wegener said that he did not find any evidence, उनको कोई evidence नहीं मिला कि कैसे climate इतना change हुआ होगा. तो उन्होंने ये सोचा जरूर है कि continents अपनी जगह बदले होंगे. So he was about the second one. This was the first academic debate where when Wegener was giving his theory. The second debate that was prevalent during the time of the continental drift was the questions on the crust. कि क्रस्ट कैसे बना है, जो क्रस्ट है, जो फर्स्ट लेयर है, वो कैसे बनी है, कैसे ये इवॉल्व हुई है. हमें पता है that the earth has formed from the nebula. The nebula actually cooled, contracted, that led to the formation of the earth, and then that is how your crust has formed. तो कई सारे debates हैं that what is द फॉर्मेशन, हाउ डिड द क्रस्ट फॉर्म, क्या ये जो क्रस्ट है ये परमानेंट है कि नहीं है, क्या ये चेंज होती है. अगर ये परमानेंट नहीं है और चेंज होती है तो क्या कौन सी क्रस्ट पहले बनी, ओशन की कॉन्टिनेंट, कौन सी क्रस्ट चेंज होके कैसे इवॉल्व हुई है, तो कैसे ओशन और कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए, कैसे ये टाइम में चेंज हुए हैं, क्या नेचर था पहले क्रस्ट का. जैसे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे ही क्वेश्चन, क्या थी पहले, कैसी थी, क्यों चेंज हुई, कब चेंज हुई, क्या प्रोसेस था, अलग अलग उनमें लैंडफॉर्म्स क्यों मिलते हैं. So there were debates that were going on, the academic debates about the crust. So this was the second idea. The third idea that is about the formation of the fold mountains. ये जो fold mountains है of the world, how have they actually been formed? What is the process that forms the fold mountain? आपको ये पता होना चाहिए. Fold mountains are made up of what? They are made up of your sedimentary rocks. They are made up of sediments from the marine origin, sediments of the marine origin, यानी ओशन के जो डिपॉजिट्स हैं उतना ऊपर उठ चुके हैं कि आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. इफ यू नो द हाईएस्ट हाइट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, इट इज अबाउट 8.8 किलोमीटर. which is that highest peak of the fold mountains, which is that highest mountain, we all know that it is Himalayas. तो आप 8.8 किलोमीटर तक मरीन सेडिमेंट्स कैसे ये अपलिफ्ट हुए, तो ये एक मिस्ट्री रही है, the mystery of the fold mountains. So we know that they are composed of the marine sediments. They are long linear chain of mountain. एक mountain नहीं है, पूरे long linear chains है. You have Karakoram, Ladakh, Zanskar, Great Himalayas, Middle Himalayas, Shivaliks. तो ये सब fold mountains ही हैं. And they are, अगर मुझे fold mountain system समझ आता है, ये मरीन सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हुए, तो कई हद तक मुझे क्रस्ट के बारे में भी पता पड़ेगा कि क्रस्ट कैसे बना, क्रस्ट कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों लैंडफॉर्म्स अलग बने. सो ये मिस्ट्री रही है ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, एंड दिस मिस्ट्री कैन ऑल्सो हेल्प अस इन नोइंग अबाउट द अर्थ्स क्रस्ट. फोल्ड माउंटेन्स के कई एक्सप्लेनेशन थे, ये आप देख सकते हैं. लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है. जब फोल्ड माउंटेन्स बना है, प्लेट टेक्टोनिक्स ने अपनी आइडिया दी है, आपकी वेगनर ने अपनी आइडियाज दी हैं, उसके पहले भी कुछ आइडियाज थी. द आइडियाज लाइक how has the fold mountains formed. Fold mountains have been formed like
योर फर्स्ट आइडिया वाज कि दे आर रिंकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ वाज कूलिंग एंड कंट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेबुला, और ये रिंकल्स बने हैं आपके अर्थ के क्रस्ट में। ये सबसे इनिशियल इंटरप्रिटेशन दैट these fold mountains are nothing but the wrinkles associated with the cooling of the earth's crust. Now जैसे दूध कूल होता है तो उसके ऊपर सरफेस में मलाई जमती है, रिंकल्स जमते हैं मलाई के, वैसे ही फोल्ड माउंटेन्स दे आर कंसिडर्ड एज रिंकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द अर्थ इज कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। बट हमें इतना पता है, इफ वी अंडरस्टैंड अबाउट द फोल्ड माउंटेन्स वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। इस बैकग्राउंड में वेगनर ने अपनी आइडिया दी, क्लाइमेट स्टडी कर रहे थे, ये डिबेट ऑलरेडी चल रहा था कि क्रस्ट कैसे बना है, क्रस्ट कैसे इवॉल्व हुआ है, और आपका फोल्ड माउंटेन्स पे भी डिबेट चल रहा था। तो ये बैकग्राउंड था जिस बैकग्राउंड में वेगनर ने अपनी आइडियाज दी थी। तो वेगनर की आइडिया क्या थी, लेट्स अंडरस्टैंड। वेगनर ने अपनी जो आइडिया दी थी, ही टॉक्ड अबाउट दिस आइडिया दैट हाउ हैव द कॉन्टिनेंट्स चेंज, हाउ हैव द मोशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स टेकन प्लेस। बट वेगनर ने आइडिया देने के पहले काफी सारी चीजें ऑलरेडी प्रेवलेंट थी, हमने वो डिबेट्स देखे, और उसी दौरान यू नो दैट ड्यूरिंग 14th एंड 15th सेंचुरी बहुत सारे वॉयजेस हुए थे। तो बहुत सारे वॉयजेस ने भी काफी सारी ऑब्जर्वेशन की थी। तो दो डिबेट थे कि क्या क्रस्ट मूव हुआ है, दैट इज हैज द क्रस्ट मूव्ड, और this is one debate, one question. The second question was that the crust is static or not, क्या यह क्रस्ट वैसा ही रहा है। तो दो स्कूल्स थे, क्रस्ट मूव हुआ है, दूसरा स्कूल था दैट क्रस्ट स्टैटिक रहा है। तो इनिशियल आइडिया वाज दैट द ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स दे आर वेयर दे आर टुडे एंड दे विल रिमेन वेयर दे आर टुडे। तो जहां आपको आज नॉर्थ अमेरिका दिखता है वहीं पे आपको कल भी दिखता था और कल भी आपको दिखेगा, जहां पे आज साउथ अमेरिका दिखता है वहां पे कल भी आपको दिखता था और कल भी आपको दिखेगा। दिस इज अबाउट द क्रस्ट, द परमानेंसी ऑफ द crust, that the crust is permanent, the crust is static, the crust do not move, the crust do not change. This was the permanency of the ocean and the continent, that the oceans are permanent, continents are permanent. वेगनर was trying to challenge this. वेगनर ने बोला मैं वर्ल्ड का क्लाइमेट के तरीके से प्रूव कर सकता हूं कि आपके कॉन्टिनेंट्स मूव हुए हैं, कुछ पुरानी क्लाइमेटिक स्टडीज को देख के हम ये प्रूव कर सकते हैं दैट कॉन्टिनेंट्स हैव मूव्ड। और जब वेगनर, उसके पहले कई सारे लोग थे, उन्होंने भी काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की थी जो वेगनर ने अपनी थ्योरी में यूटिलाइज की है। वॉयजेस ऑफ 14th एंड 15th सेंचुरी दे प्रूव्ड दैट there are some things that are matching. So there was an observation that the coastline of South America seems to be matching with the coastline of the Africa. तो दोनों का कोस्टलाइन मैच करता है, दोनों का कोस्टलाइन एक दूसरे में जुड़ जाता है। तो ऐसे लगता है कि ये एक साथ जुड़े हुए थे और बाद में सेपरेट हो गए, ऐसे वॉयजर्स बता रहे थे, ऐसे वॉयजर्स देख रहे थे। सो देयर वाज सम ऑब्जर्वेशन of the voyages from 14th and 15th century that mentioned that continents and ocean must have been broken and they must have been moved. And what was the thinking there? You can see to the matching of the coastline of the South America and that of the Africa. The coastline of South America and Africa seems to be matching. Not only the coastline of South America and Africa seems to be matching, you can also see the types of the rocks are matching. नॉट ओनली साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, आप ये भी देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का भी कोस्ट लाइन मैच कर रहा था, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के रॉक्स भी मैच कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का कोल मैच कर रहा था, सेम एज का था, सेम क्वालिटी का था। तो कोल फील्ड जो यूएस के ईस्ट साइड में है, एपेलेशियन फोल्ड माउंटेन्स में है, और जो पेनाइन्स की कोल फील्ड्स हैं जो कि वेस्ट साइड में है, वो भी काफी मैच कर रही थी। यूरोप की फील्ड्स हैं, यूके की फील्ड्स हैं, पेनाइन्स। तो ये ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस थी कि अब तो अलग अलग दिख रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, पर ये काफी सिमिलर है। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन चल रहे थे। तो देयर वाज अ स्कूल ऑफ थॉट कि नहीं, द अर्थ crust is not permanent, the earth's crust is moving, the continents and oceans they have moved. इसी दौरान वेगनर ने अपनी आइडिया दी। वेगनर ने अपनी आइडिया देने के पहले एक इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कंसेप्चुअलाइज किया था। वेगनर ने अपनी आइडिया जो थी वो कोई अर्थ की क्रस्ट कहाँ पे कैसे है उस पे बेस्ड थी। तो वेगनर ने एडवर्ड सुइस का क्लासिफिकेशन लिया। वी नो दैट अर्थ इज रेडियस इज अबाउट 6400 किलोमीटर और इसके इंटीरियर में आपकी ग्रेडिंग है।
जो इंटीरियर है ऑफ द अर्थ वो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने अलग अलग लेयर्स दी हैं। तो वेगनर ने एडवर्ड सुइस की लेयरिंग का यूज किया था। हमें याद है एडवर्ड सुइस ने, हमने पहले लेक्चर्स में देखा है, जो एडवर्ड सुइस ने बताया था कि अर्थ की 3 लेयर्स हैं, सियाल, सीमा एंड नाइफ। ये सही है कि गलत, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, बट इतना पता था कि एडवर्ड स्विस ने 3 लेयर्स दिया था, सियाल, सीमा और नाइफ, और यही इंटीरियर ऑफ द अर्थ वेगनर ने यूटिलाइज किया था। तो वेगनर ने भी बोला कि अर्थ में सियाल लेयर है, सीमा लेयर है और नाइफ लेयर है। ये जो सियाल लेयर है दिस इज द कॉन्टिनेंटल मास, जो सीमा लेयर है दिस इज द ओशनिक क्रस्ट, एंड द नाइफ लेयर इज योर this one, the most interior is the knife layer. And Wegener said that ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ को समझते हुए वेगनर ने बोला ये जो सियाल है इट इज मूविंग ओवर सीमा, द सियाल मूव्स ओवर सीमा, द सियाल वाज assumed to be moving over सीमा without any resistance. So सियाल इज मूविंग ओवर सीमा, जैसे सियाल मूव कर रहा है सीमा में तो पता पड़ता है कि क्रस्ट जो है वो परमानेंट नहीं है, क्रस्ट जो है वो आपका मूव करता है, क्रस्ट जो है वो मॉडिफाई होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वेगनर ने किस बैकग्राउंड में दी और क्या एक्चुअली मूव कर रहा था। जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं तो मूव कौन सी लेयर कर रही थी, और उन्होंने थ्योरी के पहले क्या आपके डिबेट्स थे। तो दीज वर दी अजम्पशंस। और अब वेगनर अपनी आइडिया क्या देते हैं, वेगनर कहते हैं दैट सब पूरा continents of the world, the continents of the world today, they were once together in the form of Pangaea. This Pangaea was situated in the southern hemisphere. The Pangaea was situated in the southern hemisphere and was surrounded by a big super ocean called as a Panthalassa. So there is a supercontinent, there is a super ocean. So supercontinent and super ocean, that is called as Pangaea and Panthalassa. This Pangaea was situated in the southern hemisphere. इस सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड था। और मिड मेसोजोइक टाइम, इफ यू नो व्हाट आर द सब डिविजन इन द मेसोजोइक टाइम, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया है, मेसोजोइक टाइम में कौन से 3 मेजर सब डिविजन है, उसमें से एक एज तो एज ऑफ डायनासोर्स भी हैं। सो वेगनर ने ये कहा कि मिड मेसोजोइक टाइम पे ये पैंजिया ब्रेक हो गया, द पैंजिया ब्रोक इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना, and in between the Laurasia and Gondwana was the Tethys Sea. And he says that as Sial is floating over Sima, as Sial is floating over Sima, you can see formation of the fold mountains, you can see formation of the islands, you can see formation of the volcano, and you can see formation of the earthquake. So formation of the fold mountains, earthquakes, volcanoes and islands is because Sial floats over Sima. तो वेगनर कह रहे हैं पैंजिया, पैंथिलासा, Pangea breaks into various Laurasia, Gondwana, Laurasia breaks, Gondwana breaks, and you have your present day continent. एंड जब ये ब्रेक कर रहा है, सियाल फ्लोट कर रहा है सीमा में, तो आपके अलग अलग फीचर्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, volcanoes, islands, earthquake. That is what Wegener is trying to say. And you can also see it from these diagrams that initially there was a Pangea. There was a Pangea. This is the whole Pangea. The Pangea breaks into two, Laurasia and Gondwana. The Laurasia breaks into North America, South Asia, the North America and Asia, and the Gondwana breaks into South America, Africa, your Antarctica, Australia and इंडिया। और आज आपको ये रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स आपको दिखते हैं। तो ये जो कॉन्टिनेंट है कल ऐसे नहीं थे और कल शायद ऐसे रहेंगे भी नहीं, यही वेगनर कह रहे थे। तो उन्होंने बताया 1912 में कि पैंजिया और पैंथिलासा थे, ये सब एक साथ मर्ज थे, ये सदर्न हेमिस्फीयर में थे, टूट गए इनटू अंगारा लैंड एंड दी Laurasia and Gondwana land, and they were separated by a sea called as the Tethys Sea. This is the Tethys Sea. The northern portion again broke into Northern America and Eurasia, where the southern portion broke into the southern continents. जितने भी आपको आज साउथ में कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये सब गोंडवाना से बने हैं, और इंडिया भी गोंडवाना से बना है, और अरेबिया भी गोंडवाना से बना है। और उसके बाद अब ये धीरे धीरे टूटे, और उसके बाद आपको आज के कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं। एंड दिस हैज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ, ये जैसे बना, ये जैसे टूटा, ये जो प्रोसेस हुआ, इसमें आपके 4 फीचर्स बने, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फोल्ड माउंटेन्स एंड ऑल्सो द आइलैंड्स। And also the islands have been formed because of this. So these features have been formed. That's what the Wegener theory is about.
एंड देन यू कैन सी वेगनर्स थ्योरी। ये पूरा का पूरा पैंजिया है, ये पैंजिया ब्रेक हो रहा है, पैंजिया सदर्न हेमिस्फीयर में था, पैंजिया breaks into two part, the Laurasia, you can see that northern part is Laurasia and the southern part is Gondwana. In between you have the Tethys that now again break into North America, Eurasia, South America, Africa, Arabian Peninsula, India, Australia and your Antarctica. That's what Wegener was talking about. तो ये आप देख सकते हैं कि इंडिया का मूवमेंट कैसे फ्रॉम द एंटायर सदर्न हेमिस्फीयर has been towards the northern hemisphere. So this is about your continental drift theory. क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या उनकी assumptions थी, क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं और कैसे एक्चुअली आपका मूवमेंट हुआ है. तो दिस इज योर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. एज आई मूव ऑन एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि वेगनर ने कैसे अर्थक्वेक समझाया, वेगनर ने कैसे फोल्ड माउंटेन्स आपको समझाए. वेगनर आइलैंड्स की बात करते हैं और वेगनर कैसे आपके मूवमेंट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं. अगर हम इसको फिर से देखें तो यू कैन सी दैट जो वेगनर मूवमेंट दिखा रहे हैं, वेगनर्स मूवमेंट इज जनरली नॉर्थवर्ड्स. आप देखोगे लॉरेशिया भी नॉर्थवर्ड है और वेस्टवर्ड है. तो मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज जनरली नॉर्थवर्ड एंड दी वेस्टवर्ड. नॉर्थवर्ड मूवमेंट दिखेगा और आपको मेजरली वेस्टवर्ड मूवमेंट दिखेगा. ये वेगनर ने अपने मूवमेंट्स को डिफाइन किया और वेगनर इसी दौरान समझाते हैं फॉर्मेशन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, फॉर्मेशन ऑफ द आइलैंड्स, फॉर्मेशन ऑफ द वोल्केनोज एंड द earthquake. How does he explain volcanism? How does he explain earthquake? So he says that your volcanoes are nothing but जो सियाल सीमा पे जब फ्लोट करता है, सियाल जब सीमा पे फ्लोट करता है, तो जब ये ओशन पे फ्लोट कर रहा है तो ये ओशन फ्लोर को रप्चर कर देगा, खरोच देगा. यू कैन सी इट फ्रॉम द GIF there that it will rupture the ocean floor and this rupturing of the ocean floor will lead to what? It lead to a volcanism. तो volcanism क्यों हो रहा है? Because there is a rupturing of the ocean floor. As the seal is hard, brittle and light and it is floating over seema, it is deforming the seema and it is leading to rupturing the seema, that is forming your volcanism. Okay, then how does earthquake form? Why does the earthquake occur? Why? Because the seal floats over seema. As it floats over seema, there is some disturbance. This disturbance is called your earthquake. So this disturbance is nothing but your earthquake. So why is there earthquake? Why is there fold mountain? Why is there islands? Why is there volcanism? That is Sial is floating over सीमा. Volcanism और earthquake तो समझ लिया. अब हम fold mountain समझते हैं कि वेगनर का क्या explanation है of the fold mountain. He says that as the continents moves westward, as the continents moves westward, as the continents move northward, तो जब ये वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड मूव करता है कॉन्टिनेंट, तो सियाल फ्लोट कर रही है सीमा पे. जैसे सियाल फ्लोट कर रही है सीमा पे, वो स्क्रेप कर रही है ओशन फ्लोर को. इट इज स्क्रेपिंग द ओशन फ्लोर एंड इट इज ऑल्सो पाइलिंग अप द सेडिमेंट्स ऑफ द ओशन फ्लोर. तो मरीन सेडिमेंट्स को पाइल अप करते चल रही है. आपने कोल्ड स्टोव आइसक्रीम में ये प्रोसेस देखा होगा that as you scrape, there is pilation of the ice stream. So it says that as the seal scrapes the ocean floor, the sediments accumulate on the leading edge. Leading edge is this one, leading edge is this one, leading edge is this one, and this marine sediments they pile up to form the fold mountains on the edge of the continent. तो वेगनर वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों फोल्ड माउंटेन्स मरीन सेडिमेंट से बने हैं, क्योंकि सियाल स्क्रेप कर रही है ओशन फ्लोर को, स्क्रेप कर रही है ओशन फ्लोर को और सेडिमेंट्स का अपलिफ्टमेंट हो रहा है. एंड क्योंकि वेगनर सिर्फ वेस्टवर्ड और नॉर्थवर्ड मूवमेंट बताते हैं, द वेस्टवर्ड एंड द नॉर्थवर्ड मूवमेंट, ही कैन ओनली एक्सप्लेन the mountains that are formed on the west side. He can only explain the mountains which are formed on the west and the north side. So it's talking about the formation of Rockies, the formation of Andes, the formation of the Alps. तो रॉकीज, एंडीज और एल्प्स को ही समझा पाते हैं. जो कॉन्टिनेंट के बीच में है जैसे हिमालयस, वो नहीं समझा पाते. यूराल्स वो नहीं समझा पाते. एल्प्स वो नहीं समझा पाते क्योंकि वो सियाल का स्क्रेपिंग दिखा रहे हैं ओवर सीमा. तो ही इज एक्सप्लेनिंग सम फोल्ड माउंटेन्स on the basis of the movement of the Sial and the Seema. As we move on, what is the explanation for the islands? He says that jo edge, so let's say this is Sial and this Sial is floating over, let's say, Seema. जो edge
पहले चलती है उसको हम बोलते हैं लीडिंग एज, और जो एज बाद में चलती है उसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग एज। तो फोल्ड माउंटेन्स कहाँ एक्यूमुलेट होता है? लीडिंग एज की तरफ। तो और आइलैंड्स कहाँ बनते हैं? ट्रेलिंग एज की तरफ। ट्रेलिंग एज टूट के आपका आइलैंड्स बनाएगी। तो व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? यू कैन लुक एट द GIF here that as Sial is moving, there is a leading edge, there is a trailing edge. This leading edge is moving fast, the trailing edge is moving slow. As the trailing edge is moving slow, वो धीरे 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 लीडिंग एज से कट हो जाएगी और क्या बना देगी? आपके आइलैंड्स बना देगी। तो इसीलिए आपको आइलैंड्स कहाँ मिलेंगे? हमेशा साउथ या ईस्ट में, क्योंकि लीडिंग एज तो वेस्ट और नॉर्थ में चल रही है। तो आइलैंड्स कहाँ मिलेंगे? साउथ में। द वेस्ट एंड नॉर्थ, तो आपके आइलैंड्स आपको मिलेंगे साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में एंड साउथ ईस्ट में. So he's explaining islands are found on the south and the east, like Sri Lanka, like Madagascar, like Tasmania, like Terra del Fuego, like Newfoundland Islands, like Caribbean Islands. तो ये हमेशा साउथ और ईस्ट में मिलेगा. तो what is it saying? That seal floats over steamer. The seal are subjected to tremendous friction. The trailing edge breaks off to form the islands. आपका islands बनता है क्योंकि trailing off break हो रहा है. The trailing off edge is not able to keep place. वो slow है इसलिए वो टूट जाता है. इसलिए जब बताते हैं वेगनर की कॉन्टिनेंट्स हमेशा नॉर्थ और वेस्ट में ही मूव करते हैं, आइलैंड्स हमेशा आपको साउथ और ईस्ट में ही मिलेंगे. दैट्स व्हाट वेगनर इज ट्राइंग टू डू. तो हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देख रहे थे. पैंजिया, पैंथिलासा क्या है, कैसे मूवमेंट हुआ है, क्या होता है सियाल, क्या होता है सीमा, क्यों सियाल सीमा पे फ्लोट कर रहा है, और सियाल जब सीमा पे फ्लोट कर रहा है तो आपके वेरियस फीचर्स कौन से बन रहे हैं ऑन दी अर्थ क्रस्ट. Moving on, this is your continental drift theory and the various explanation given by Wegener. Not only Wegener gave certain explanation, Wegener ने कई सारे evidences भी दिए थे. Wegener कहते हैं कि मेरी theory scientific theory है, logically deduced theory है, और देखिए मैं evidences के साथ prove भी कर सकता हूँ. कुछ evidence Wegener ने खुद के दिए हैं और कुछ evidence Wegener के already किसी और के जो थे उसको utilize किया है. Evidences जो है वो है jigsaw fit, you have the structural fit, you have fossil evidences, and you have the paleoclimatic evidences. So jigsaw fit, the rock structure or the stratigraphic evidences, you have paleoclimatic evidences, and you have the fossil evidences. The first evidence is a jigsaw evidence. It's like the puzzle. जब आप puzzle बनाते हैं तो कैसे आप चीजों को जोड़ देते हैं, तो आप फिट करना चाह रहे हो और आप पजल को फिट करना चाह रहे हो. ये वॉयेजर्स ने भी बोला था that the coastline of the South America seems to be matching with the coastline of the Africa. अफ्रीका और साउथ अमेरिका की कोस्टलाइन एक दूसरे से मैच कर रही है, तो जिसको कहते हैं जिक्सॉ फिट. यानी दे माइट हैव बीन टुगेदर वंस अपॉन अ टाइम, ओनली देन is your fit the coastline actually matching. So this is your jigsaw fit, which says that the fitting shape of the coastline of the eastern side of the South America and the western Africa, there is matching of the coastline. That means once they might have been fitted into one another, now they are poles apart, now they are distance apart. This is first evidence. The second evidence is the stratigraphic evidences. Not only the puzzle fit, not only the jigsaw fit is there, बट आप देखोगे कि रॉक्स भी मैच करते हैं. तो जब आप पजल बनाते थे तो आप देखते थे कि सिर्फ ये मैच नहीं करना चाहिए, कलर भी मैच करना चाहिए. इफ दिस इज ग्रीन कलर, दिस हैज टू बी ग्रीन कलर. दिस इज रेड कलर, दिस हैज टू बी रेड कलर. ओनली देन यू विल नो दैट द फिट इज प्रॉपर. तो सिर्फ कोस्टलाइन मैच करने से कुछ नहीं होगा, आपके रॉक्स भी सेम होने चाहिए. और ये भी देखा गया था कि रॉक्स भी ऑन द ईदर साइड ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑन द ईदर साइड ऑफ अफ्रीका दे वर matching. So not only the shape was matching, but the rock type was matching and the rock age was matching on the either side of the Atlantic Ocean. तो ये था stratigraphic evidence. ये और थोड़ा डिटेल में, stratigraphy का मतलब होता है रॉक. तो रॉक फिट या रॉक एविडेंसेस भी थे. सिर्फ ये एविडेंस नहीं थे, आप देखोगे कि बहुत ही स्पेसिफिक एविडेंसेस, जैसे कि ब्राजील के रॉक्स मैच करते हैं घाना के रॉक्स के साथ. घाना में गोल्ड है, ब्राजील में गोल्ड नहीं है, बट जो गोल्ड दे सकते हैं वैसे रॉक्स हैं. और घाना में गोल्ड है पर घाना में गोल्ड के रॉक्स नहीं है.
तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट घाना में गोल्ड है पर गोल्ड वाले रॉक्स जो गोल्ड दे सकते हैं वही नहीं है, और ब्राजील में गोल्ड रॉक्स हैं बट गोल्ड नहीं है? इसका ये मतलब है कि घाना का जो गोल्ड है वो ब्राजील के गोल्ड रॉक से बना है। तो ईस्टर्न हाईलैंड्स, ईस्टर्न ब्राजीलियन हाईलैंड्स, जिसको हम बोरबेरमा प्लेटू भी कहते हैं, उधर ही आपका बोरबेरमा प्लेटू है। ये एक्सटेंड करता है गिनी तक और लोमा माउंटेन से। यहाँ पे भी आपके लोमा माउंटेन्स हैं, गिनी है, ये दोनों सेम टाइप के रॉक है। आपकी गोल्ड सीम्स हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स हैं घाना में, और ब्राजील में उसके रॉक्स हैं। तो इसका ये मतलब है कि अभी जो इतने दूर दिखते हैं वो कभी कभी वो एक टाइम पे पास थे। ठीक है, तो गोल्ड वहां पे मिल रहा है, रॉक वहां मिल रहे हैं, दोनों का एज सेम है, दोनों का टाइप सेम है। तो दीज आर योर एविडेंसेस, द जिग्सॉ एविडेंसेस, द स्ट्रैटिग्राफिक एविडेंसेस एंड द structural evidences. As I move on to another evidence, that you have the fossil evidence. जब वेगनर ने अपने फॉसिल एविडेंस दिया था तो उन्होंने देखा था कि एक फर्न है, जैसे कि इसका नाम है ग्लॉसिपटेरिस फर्न। ये ग्लॉसिपटेरिस फर्न आपको इतने दूर दूर जो आइलैंड्स हैं उन सब में दिखता है, इतने दूर दूर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें आपको दिखता है। ग्लॉसिपटेरिस फर्न आपको अफ्रीका में मिलता है, आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, एंटार्क्टिका में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगा। तो फर्न तो स्विम करके नहीं गया, इतने ओशंस हैं बीच में, तो फर्न तो स्विम करके नहीं गया। और फर्न इतने वेरीड क्लाइमेट में मिल रहा है, इंडिया के हॉट टाइम, एंटार्क्टिका का कोल्ड इसमें, ऑस्ट्रेलिया के हॉट इसमें, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के कोल्ड रीजन में, साउथ अमेरिका के ह्यूमिड रीजन में। तो क्यों आपको इतना वेरीड क्लाइमेट होने के बाद भी आपको वो फर्न दिखता है? ये प्रूफ करते हैं, ये वो फॉसिल जो पुराना फॉसिल है ये उस टाइम का है जब कॉन्टिनेंट सारे इकट्ठे थे। नॉट ओनली अ फर्न, आप बहुत सारे ऐसे एंशिएंट रेप्टाइल्स भी देखेंगे, जैसे कि लिस्टोसॉरस, जैसे कि योर मीजोसॉरस, you have Cyanonathis. So Cyanonathis साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका में है। यू हैव मीजोसॉरस अलोंग साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, यू हैव लिस्टोसॉरस अक्रॉस इंडिया, एंटार्क्टिका एंड अफ्रीका। और ये रेप्टाइल्स हैं, दीज रेप्टाइल्स कैन नॉट स्विम। ये तो आपका फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, ये तो बिल्कुल स्विम नहीं कर सकता। तो आप क्यों मीजोसॉरस, ग्लॉसिपटेरिस, लिस्टोसॉरस, साइनोनाथिस आपको वाइड स्प्रेड जगह पे मिल रहे हैं? बिकॉज दीज कॉन्टिनेंट्स वर वंस टुगेदर। साउथ अमेरिका was together with Africa, the coastline match, the rock fit, the fossil evidence. Then there was also Antarctica, there was also India, you also had Australia. They were once together. As they were once together, ancient fossils आपकी सेम है और आपको जगह जगह पे मिल रही है। तो दिस इज योर fossil evidences. Another evidence that is considered to be one of the best evidence that have been given by Wegener was your paleoclimatic evidence. जो फॉसिल एविडेंस था उन्होंने बता दिया कि ये सारे लाइफ फॉर्म्स एक कॉन्टिनेंट से बने हैं, और उन्होंने एक एविडेंस दिया, दैट इज योर पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस। ये जो पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइमेटिक एनोमली। एनोमली वो चीज होती है जो कि नॉर्मल से डिपार्चर होती है। तो क्लाइमेटिक एनोमली यानी आप देखेंगे कि पुराना वाला क्लाइमेट और उसके रिसोर्सेज इज नॉट मैचिंग विद द न्यू क्लाइमेट टुडे। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कोल रिसोर्सेज का। एक वी हैव ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट लेक्चर दैट हाउ इज कोल रिसोर्सेज फॉर्म्ड। द कोल रिसोर्स इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज anaerobic decomposition of the plants. The plants, they undergo anaerobic decomposition. As they undergo anaerobic decomposition, you will have the coal deposits. अब फॉरेस्ट को anaerobic decomposition के लिए आपको फॉरेस्ट तो लगेंगे, और अगर आप आज के कोल रिसोर्सेज देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द कोल रिसोर्सेज आर वेयर, मेजॉरिटी ऑफ द कोल रिसोर्सेज आर इन दी टेम्परेट रीजन्स। अपने रशिया यूक्रेन इशू के टाइम पे भी पढ़े होंगे कुछ नहीं। यू हैव डॉनबास, you have Donetsk, Kuznets, Ural region, you have Pechora basin, Ruhr valley, यहाँ पे पिनाइंस हैं, यहाँ एपलेशंस हैं, आपके अल्बर्टा प्रोविंस है कनाडा में। तो ये सब तो टेम्परेट रीजन्स हैं। यहाँ पे कोल कैसे मिल रहा है? यहाँ तो डेंस फॉरेस्ट होते नहीं हैं, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? हॉट ह्यूमिड रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन। और इसको कॉन्ट्रास्ट देखें कि साउथ अमेरिका में
इतना सारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट होने के बाद बहुत ज्यादा कोल नहीं है। इंडिया में कोल है बट बहुत लो क्वालिटी का है एज कंपेयर टू कोल। तो इंडिया में भी तो अच्छे क्वालिटी का कोल होना चाहिए था, बट व्हाई इज नॉट दैट टेकिंग प्लेस? दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक इनॉमली, दैट आज का जो ठंडा रीजन है वहां कोल मिल रहा है, यानी कल क्या होगा, कल वो गर्म रहा हुआ होगा। आज इंडिया में गर्म होने के बावजूद भी इतना कोल नहीं मिल रहा, साउथ अमेरिका में कोल नहीं मिल रहा, ब्राजील में कोल नहीं मिल रहा, गर्म रीजन होने के बाद। यानी कल ये रीजन गर्म नहीं था तभी तो कोल नहीं मिल रहा, तो कल ये रीजन ठंडा रहा होगा। ये है climatic anomaly. Basically, if you look at the richest coal field of the world along Appalachia, that is this portion of America, along Newfoundland Island, that is this portion of America. If you look at this, if you look at these resources, you can see that the present day coal resources, the present day coal resources are formed in what? In the present day temperate regions. And these temperate regions are what? They are cool, they are dry, they do not have a dense forest. And if you see, South America में कोई coal resource नहीं है, कोई coal field नहीं है, despite having equatorial forest. और यहाँ कोई dense forest नहीं है तभी भी आपका coal resources है. So this distribution of coal is one climatic anomaly. Not only the distribution of coal is a climatic anomaly, you will also see, that the distribution of glacial till, the distribution of moraines, आपके जो ग्लेशियर होते हैं वो अपने साथ कुछ रॉक्स लेके आते हैं, कुछ अपने साथ कुछ बोल्डर्स लेके आते हैं। तो वो रॉक्स बोल्डर्स आपको इंडिया में दिखेंगे, आपको साउथ अफ्रीका में दिखेंगे। ग्लेशियल रॉक्स, ग्लेशियल बोल्डर्स, ग्लेशियल क्ले इंडिया में दिख रहा है। अगर आप जानते हैं उड़ीसा में एक रीजन है तालचेर रीजन, वहां पे ग्लेशियल मार्क्स दिखते हैं, यानी ग्लेशियल ने अपने कुछ मार्क्स छोड़े हैं। तो क्यों ग्लेशियल अपने मार्क्स छोड़ रहा है? दिस इज वाई, बिकॉज यानी ये रीजन, आज का जो ह्यूमिड रीजन है, ये कहीं पे ठंडा रहा होगा। दैट यू कैन सी इट हियर, दैट यू सी ग्लेशियल मोरेन्स इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एंड ये ग्लेशियल मार्क्स दे आर ऑफ द सेम एज, यानी ये क्लाइमेटिक अनोमली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आइस राफ्टेड बोल्डर्स हैं। यू कैन सी दिस इन अफ्रीका, you can see this in South America, you can see this in India, you can see this in Australia and also Antarctica. यानी आज तो गर्म दिख रहा है पर कल क्या था? कल ये ठंडा था। आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि आज का जो टेम्परेट रीजन है वो कल ठंडा नहीं था, और आज का जो ट्रॉपिकल रीजन है वो कल गर्म नहीं था और वो ठंडा था? ये पैंजिया की मदद से। कैसे पैंजिया की मदद से? कि इफ यू लुक एट दिस रीजन ऑफ पैंजिया, दिस इज योर लोरेशिया, दिस इज समवेयर नियर द equator. That means Europe and North America, they were there in the tropics. They were there in the tropics. And if you look at India, the South America, the Gondwana, the portion of Australia, the portion of Antarctica, they are where? In the polar regions. तो अगर आप पैंजिया को ढंग से देखेंगे तो पैंजिया क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में है तो आज का ट्रॉपिक लैटिट्यूड वो पोल्स में चला जाता है, और प्रेजेंट डे टेम्परेट वो कहाँ चला जाता है? आपके ट्रॉपिक्स में, क्योंकि पूरे पैंजिया को आप एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं और उसको आप नीचे लेके जा रहे हैं। तो वेगनर ने ऐसे समझाया था क्लाइमेटिक अनोमली को, दैट ये कॉन्टिनेंट सारे साथ में थे पैंजिया के, एक बार साथ थे और ये सदर्न हेमिस्फीयर में था। तो आज का टेम्परेट कल का ट्रॉपिक्स बनता है, वार्म वेट बनता है, इसलिए वहां कोल्ड फील्ड्स है, और आज का ट्रॉपिक्स ये आपका पोलर रीजन बन जाता है। इसलिए इसको आप बोलते हैं यहाँ पे ग्लेशियल एविडेंसेस हैं। ये प्लेलियो क्लाइमेटिक एविडेंस वेगनर ने दिए थे, और ये सबसे कन्विंसिंग एविडेंस है कि कैसे इंडिया में आपको ग्लेशियल मिल रहा है, ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, और कैसे आपको कोल मिल रहे हैं यूरोप में। So this is one of the most important evidence of the Wegener, that he says the present day tropic region that I'm marking here was what? Once in the polar regions, and the present day temperate regions once in the tropical locations. So this is what Wegener is trying to say, and therefore he says that the continent is not static, the continent is moving, the continent has moved throughout the millions of years. And how have they moved? पहले तो उन्होंने कोई फोर्स की बात नहीं की थी, बट बाद में जब उनको प्रेशराइज किया गया तो उन्होंने इम्पल्स में आके दो फोर्सेस की बात कर दी।
उन्होंने दो फोर्सेस जो दिए, क्योंकि कॉन्टिनेंट का मूवमेंट नॉर्थ और वेस्ट में ही था, ऐसा उन्होंने बोला था, तो उन्होंने एक पोल फ्लीइंग फोर्स दिया, जो फोर्स आपका यहाँ देख पाओगे, जो कि ऊपर मूव कर रहा है चीजों को, और एक उन्होंने फोर्स दिया है, दैट इज दी tidal force, जो westward movement कहता है. So you can look at the forces that the continents are moving towards the pole. The first one, the continents are moving towards the pole, they're moving towards north, and the continents are moving towards west. So he says, he gives two important forces. One he calls is as the equatorward or the north south movement, that is moving towards the poles, and therefore he calls this as the pole fleeing force. Why do you have pole fleeing force? Because there is an imbalance. इम्बैलेंस किसमें है? दो उन्होंने नाम लिए, सेंटर ऑफ बॉयंसी में एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी में. तो डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स में और फोर्स ऑफ बॉयंसी में, जिसके कारण आपके कॉन्टिनेंट्स कहाँ मूव होते हैं? कॉन्टिनेंट्स आपके नॉर्थ में मूव होते हैं. दैट्स व्हाट वेगनर इज सेइंग. वो वेगनर फोर्स को समझा नहीं रहे हैं, वो फिजिसिस्ट नहीं है, वो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट नहीं है. इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फोर्सेस, इज जस्ट मेंशनिंग द नेम ऑफ द फोर्सेस इन इम्पल्स. तो आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, बस आपको ये दो फोर्सेस के नाम पता होने चाहिए. एक फोर्स है आपका पोल फील्ड फ्लो फोर्स एंड द अदर इज द tidal force. Pole fleeing force and the tidal force. Pole fleeing force is because of the difference between the center of gravity and the center of buoyancy, and tidal force is because of the gravitational pull of the sun and the gravitational pull of the moon. तो sun और moon के कारण है. आपको पता है टाइड्स क्यों बनते हैं? वन ऑफ द रीजन इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, टाइड्स क्यों बनते हैं, और यही तीन ऑप्शंस दिए हुए थे. तो जैसे टाइड्स मूव होते हैं वैसे ही वेगनर कहते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ इयर्स में ये फोर्स काम करता है, टाइडल फोर्स, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून, तो ये कॉन्टिनेंट भी मूव कर सकता है. ये सबसे बड़ा लिमिटेशन हो गया वेगनर का, क्योंकि एक फिजिसिस्ट ने ये प्रूव कर दिया कि अगर टाइडल फोर्स, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड द मून, इफ इट इज ऑफ सच अ हाई इंटेंसिटी, तो ये तो कॉन्टिनेंट्स क्या, अर्थ के रोटेशन को बंद कर देगा. तो ये उन्होंने प्रूव कर दिया इक्वेशन की मदद से, इसीलिए वेगनर की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया. वेगनर की थ्योरी कुड नॉट प्रूव द फोर्सेस, and therefore there was major criticism against the Wegener's theory. Wegener's theory was criticized because he could not prove the forces. तो दो ही फोर्स इम्पल्स में आके वो बोल देते हैं. तो what are the criticism of the Wegener's theory? One major criticism is he presents a flawed driving mechanism. ये जो फोर्स की बात करते हैं, the force is flawed. क्योंकि जो वेगनर फोर्स की बात करते हैं, टाइडल फोर्स और पोल फ्लीइंग फोर्स, इसके लिए ग्रेविटी शुड बी एटलीस्ट 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर to drive a CR. If you have to drive CR, the gravity has to be at least 10,000 times stronger. Okay, so this was one major criticism of Wegener. Wegener अपनी स्टोरी बना देते हैं, बोलते हैं पैंजिया है, पैंथेलासा है, पैंजिया टूट जाता है, पैंजिया ऐसे मूव करता है, वेस्ट और नॉर्थवर्ड मूव ही करता है, बट वो बता नहीं पाते पैंजिया क्यों बना, पैंजिया के पहले क्या था, पैंजिया क्यों टूटा. ये जो डिटेल्स है वो नहीं बता पाते. सो ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ पैंजिया, ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग द स्प्लिट ऑफ पैंजिया, ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाट वाज बिफोर एंड आफ्टर पैंजिया. ठीक है, पैंजिया बन गया, अपने बीच से ही बन गया, अपने बीच से ही फोर्स आ गया, अपने से ही टूट गया. वो कुछ ज्यादा बताते नहीं है. वो बता रहे हैं कि सियाल मूव हो रहा है सीमा में, तो आपकी वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, फोल्ड माउंटेन्स और आइलैंड्स बनते हैं, बट पूरे फोल्ड माउंटेन्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते. इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हिमालयस, इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन यूराल्स, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट के बीच में. तो सियाल के बीच में जो बनते हैं लैंडवर्ड माउंटेन्स, वो बता नहीं पाते. सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे आइलैंड्स तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स नहीं होते. कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स यानी क्या, जो कॉन्टिनेंट से टूट के बना है. तो वेगनर ने क्या बोला, सियाल टूटेगा और आपका आइलैंड्स बनेंगे, बट सारे आइलैंड्स तो ऐसे नहीं बनते. आपकी कोरल आइलैंड्स भी होते हैं, वॉल्केनिक आइलैंड्स भी होते हैं. तो वेगनर उनको नहीं समझा पाता है, और वेगनर सिर्फ जो आइलैंड साउथ और ईस्ट में है बस उन्हीं को समझा पाता है. तो वेगनर इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दी नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स. So what is this? His forces are inadequate. He does not explain why Pangaea broke. He is not able to explain what created Pangaea. He is not able to explain why the islands are not always in south and east.
He is not able to explain the landward mountains. He is not able to explain non-continental islands. एंड जो पहला पड़ा था पॉइंट, वो कहते हैं सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा। ये आइडिया क्या है? ये आइडिया है इनकरेक्ट। इन रियलिटी सियाल इज नॉट फ्लोटिंग ओवर सीमा। सो हिज आइडिया ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, his idea, his concepts about the interior of the earth is not correct. Wegener's interior of the earth is incorrect. It is not that the continents are floating over ocean, it is the lithospheric plate that floats over the asthenosphere. तो lithosphere float कर रहा है asthenosphere, यही plate tectonics भी कहता है। What is lithosphere? I would like to know from your comments. हमने पढ़ा है lithosphere क्या होता है in the interior of the earth. So it is not just the ocean that is floating, it is not just the continent that is floating over the ocean, it is the crust that is floating over the, it is the lithosphere that is floating over the asthenosphere. Lithosphere float करता है asthenosphere में। तो ये आपके criticism है, पर वेगनर को पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं करेंगे। वेगनर ने आइडिया तो ठीक दिया, डिटेल्स गलत दी, फोर्स नहीं समझा पाए, सारे एग्जाम्पल्स नहीं समझा पाए, बट एक्चुअली कॉन्टिनेंट्स and crust and lithosphere, they are not static, they are actually dynamic. So lithosphere is moving and आपकी इसी बेसिस पे बना है प्लेट टेक्टोनिक्स। So you have the lithosphere that is moving. तो इस बात के लिए क्रेडिट तो देना बनता है। So you have, it is a logically deduced theory. लॉजिक की बात करते हैं, कोई टीलियोलॉजी की या भगवान की या माइथोलॉजी की बात नहीं करते हैं, लॉजिक से करते हैं। लॉजिक फ्लॉड है बट लॉजिक तो है, ठीक है। सो इट इज अ बोल्ड डिपार्चर from the existing idea that the continents and oceans are permanent and static. ये डिपार्चर है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया और अपनी एक थ्योरी रखी। ये भी अच्छी आइडिया है जो उन्होंने फोल्ड माउंटेन्स के लिए समझाया, that the fold mountains is formed because sea are moving over seema. Fold mountains are not just the wrinkles on the surface of the earth. Fold mountains are formed because of sea are over seema. He was one of the first one to challenge the idea of the permanency of the crust and the ocean. उन्होंने मूवमेंट की बात तो की है, he is not saying permanent है, he is not saying dynamic नहीं है, he is not saying static है, तो इस बात के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। फोल्ड माउंटेन्स मूवमेंट के कारण समझाया, इस बात के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड his idea, though his details were incorrect, though his driving mechanism was incorrect, his details were incorrect, but उसकी आइडिया तो सही थी। और यही आइडिया अब फिर किसने रिवाइव की? the most modern theory in geomorphology, the plate tectonic theory. This idea was revived by plate tectonic theory. तो वेगनर का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी बनता है। ये आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, एंड देयरफॉर वी गॉट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो, यू स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।